ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نور صاحب، آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، یہ خبر نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ آج سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے اور سابق رفیق خاص جناب پرویز خٹک صاحب، رفیق خاص عمران خان صاحب کے، پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا بانی تحریک انصاف کے ساتھ اس اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہوئی۔ تو میری خواہش ہے کہ جس طرح آپ سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 کی منظر کشی کرتے ہیں، منظر کشی تو مجھے لگتا ہے معذرت کے ساتھ سر آپ کا دھندا ہے، جس خوبصورتی سے آپ منظر کشی کرتے ہیں، میں یو آر اسپیشلائزڈ ان منظر کشی، میں 1 سال میں نے یہ دیکھا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے کردار آپ پروتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں وہ منظر کشی کریں اور میرے سننے والے آج سنیں اور دیکھیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بیرسٹر عدنان حیدر نے میری کٹ لگا دی، لیکن آج کے پروگرام کا آغاز اس سوال سے نہیں کیا بیرسٹر عدنان حیدر نے کہ سر اب تو فیصلہ آنے ہی والا ہے، آپ کے خیال میں فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ مخصوص نشستیں جو وہ رولا چل رہا ہے، جس کی بہت دنوں سے سپریم کورٹ سماعت کر رہا تھا کہ کیا وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں یا حکومت ہی کے حصے میں چلی جائیں۔ چونکہ انہوں نے مجھے عدالتی معاملات میں نہیں گھسیٹا، یہ بھی ویسے عدالتی معاملہ ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، لیکن اس میں ایک دوسری ڈیمنشن ہے۔ بھیا میں اتفاقاً آج اس سلسلے میں ہوم ورک نہیں کر پایا۔ نہیں، آپ بہت دیکھیں، آپ ایک چلاک صحافی ہیں، آپ نے پوری سن گن لی ہوئی ہے میرے برادر، نہیں، آپ نے سارا دن آپ بڑے حرکت میں رہے۔ بات سنو، مجھے تمہارے ساتھ جھوٹ بولنے کا کوئی شوق نہیں اور میرا وقت نہ بھی ضائع کرو۔ میرا سارا آج فوکس تھا، میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات خراب کروانے کی بہت شدید سازش شروع ہو چکی ہے۔ خراب کروانے بھائی وہ ہم بات کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنا سارا فوکس اس پہ رکھا ہوا تھا۔ ہم اس کو سیکنڈ سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے جی، بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور آپ کی توجہ درکار ہے، کیونکہ یہ ایک بہت سیریس کرائسس بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب وہاں کیا ہوا اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں جی عثمان مغل صاحب، اڈیالہ جیل میں، یہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہو رہی تھی جی اس کو یہ دیکھ رہے تھے۔ عثمان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آواز۔ بہت شکریہ بھائی، عدنان نے تو آپ کو اڈیالہ جیل کا باسی بنا دیا تھا، میں نے وضاحت کر دی ہے۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آج کیسا منظر رہا جب پرویز خٹک صاحب اور بانی تحریک انصاف ایک دوسرے کے روبرو آئے اور آنکھوں میں آنکھیں ملی۔ جی بہت شکریہ۔ چونکہ آج اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈز کے انڈر ریفرنس جو تھا اس کی سماعت ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اقتدار چلا گیا تھا اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے جو قریبی دوست تصور کیے جاتے تھے پرویز خٹک، ان کا بالآخر آج اڈیالہ یہ تصور نہیں کیے جاتے عثمان۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی ٹو یو، ذرا یعنی اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ جو تھے نا اپنا یہ پرویز خٹک صاحب، یہ چودھری نثار اور عمران خان صاحب، یہ تینوں ایچ ایس این کالج لاہور میں نا بابو ان کہ تگڑم کہتے تھے کہ یہ تینوں کا اکٹھ، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کے والد جو ہیں وہ بہت امیر و کبیر ٹھیکیدار تھے، تمہارے ساؤتھ میں بہت انہوں نے کام کیا، اسی لیے ایچ ایس این کالج میں انہیں داخلہ ملا، تو ان کے والد نے انہیں گاڑی لے کر دی ہوئی تھی پرویز خٹک صاحب کو جی۔ تو یہ چودھری نثار اور عمران خان کو اس گاڑی میں بٹھا کر یہ لوگ ریگل سینما اور پلازا سینما میں جا کے انگریزی کی فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ یہ اتنے بوزم بڈیز ہیں بچپن کے، یعنی بابا بتا رہا ہوں نا کہ تینوں کا بوزم بڈیز اس کے لیے انگریزی میں ہوتا ہے۔ جی فرمائیں، تو وہ تصور ہوتے نہیں، بس میں نے کہا میں یہ انفارمیشن بھی آپ کو۔ جی بہت شکریہ۔ چونکہ آج کمرہ عدالت کے اندر جو پرویز خٹک تھے ان کا آمنا سامنا ہوا بانی پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے یکسر نظر انداز کیا بانی پی ٹی آئی کو، اور وہ جج صاحب کے روبرو جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروانا شروع کیا، تو فوراً سے بانی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنی نشست چھوڑی، تو وہ بالکل برابر میں جا کے کھڑے ہو گئے پرویز خٹک کے، اور پرویز خٹک نے جیسے ہی بانی پی ٹی آئی کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً سے انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کی اور انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروانا شروع کیا، جس کو بانی پی ٹی آئی نے کافی غور سے سنا، ان کا جو بیان جو انہوں نے ریکارڈ کروایا، اور اس پر کافی زیادہ وہ مسکراتے رہے
15 मिनट का ये बयान था। 11:35 पर जो परवेज खटक है अच्छा उस्मान भाई, आप थोड़ी सी जिस्ट दे सकते हैं कि उस 15 मिनट में बुनियादी एक दो नुकात क्या कहे परवेज साहब ने? जी, परवेज खटक साहब ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और जिस पे बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे, उन्होंने ये कहा कि नैब ने मई 2023 में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मेरा बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था और साबिक मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने ये बताया था काबीना को कि खुफिया तरीके से कुछ रकम जो है वो बाहर मुंतकिल की गई है और उस रकम को वापस लाने के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। उसके बाद उन्होंने ये सारा मामला जो है वो काबीना में उठाया और काबीना के एजेंडे के अंदर यह मामला शामिल नहीं था। एडिशनल एजेंडे के तौर पर इस बात को काबीना के अंदर जो है वो उठाया गया, जिस पर मेरे समेत यानी परवेज खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि मेरे समेत दीगर जो अरकान थे उन्होंने इसकी मुखालफत की और बाद में ये कहा गया कि ये रकम जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है उन्होंने ये बाहर मुंतकिल की है। लेकिन इस रेफरेंस के जो तफ्तीशी थे उन्होंने ये बताया था कि उसके साथ एक तहरीर भी मौजूद थी और वो ये तहरीर ये थी कि इस रकम को गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल करने के लिए प्रॉपर्टी टाइकून जो है उन्होंने सहूलतकारी की है। चूँकि जब ये मामला काबीना में उठाया गया था तो उस वक्त जो तमाम दस्तावेज़ात थी वो एक बंद लिफाफे में जो है वो काबीना में पेश की गई थी, वो लिफाफा वहाँ पर खोला नहीं गया। तहरीर के हवाले से उन्होंने बताया कि जो इस रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर है उन्होंने बताया कि उसके साथ एक तहरीर मौजूद थी और वो ये तहरीर थी। अच्छा उस्मान, लेकिन एक बात आपने जिस तरह, बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने बता दिया, तो वो तो अपेरेंटली जिस तरह आपने बताया है मुझे, तो ये परवेज खटक साहब का जो बयान है वो तो बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाए इल्ज़ामात की एक हवाले से तस्दीक करता सुनाई दे रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लिप्स सोशल मीडिया पे एक वायरल थी, शेख वकास अकरम साहब जो पीटीआई के हैं वो कह रहे थे जी कि उन्होंने जब बयान दिया तो बयान देने के बाद जो हुकूमती वकला थे उन्होंने कहा जी कि हमारा गवाह तो हॉस्टाइल हो गया। क्या ये दुरुस्त है तासुर या बस वो ऐसे ही नहीं, साथ में बॉडी, जो दूसरा साहब पूछना चाह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज, ये नहीं, पहले एक तो ये तासुर क्या दुरुस्त है या उन्होंने लोगों को खुश किया है, और दूसरा जाहिर है कि क्या था परवेज खटक साहब, परवेज खटक की बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि इतने पुराने दोस्त हैं, जब देखा पहली दफा इस सारे, और आप भी इतने अरसे से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब आप तो जाहिर है कि आपने कुछ देखिए जी, क्योंकि इस सारे रेफरेंस के अंदर अभी तक जो है ना वो 31 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, लेकिन जितने ज़्यादा वो घबराए हुए थे परवेज खटक, मैंने किसी गवाह को इतना घबराया हुआ नहीं देखा, क्योंकि परवेज खटक साहब की जो है वो बिल्कुल उनकी पूरी बॉडी जो है वो कांप रही थी और उनके अल्फाज जो है वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। ये एक रुकिएगा उस्मान, उनकी बॉडी कांप रही थी, पहले इमरान खान नहीं थे और वो बयान कलम बंद करा रहे थे, फिर इमरान खान आए, तो ये कपकपी खान के आने के बाद शुरू हुई या पहले से वो कांप रहे थे? नहीं, जैसे ही वो अपना बयान उन्होंने कलम, जैसे वो अदालत के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि कमरा अदालत के अंदर बानी पीटीआई नहीं है, हालांकि वो मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने अपना बयान कलम बंद करवाना शुरू किया तो फ़ौरन से बानी पीटीआई उनके बराबर में जाकर खड़े हो गए। तो उन्होंने जैसे ही अपनी लेफ्ट साइड पे देखा तो बानी पीटीआई मौजूद थे और वो बड़े गौर से परवेज खटक को देख रहे थे। तो परवेज खटक की उसके बाद जो हालत थी, क्योंकि हमने काफी करीब, बानी तहरीक ने जब उनको देखा और उन्होंने बानी तहरीक को देखा तो वो कांपना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, उनके अल्फाज जो है वो उनका साथ नहीं दे रहे थे और कपकपी सी एक उनको तारी हुई थी। और क्योंकि बार बार वो जो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उस पर फाजिल जज जो है वो उनकी बात को तस्दीक करवाने के लिए उनकी बात दोबारा दोहरा रहे थे, क्योंकि वो उनकी आवाज़ जज साहब तक भी जो है वो नहीं पहुंच रही थी। काफ़ी ज़्यादा वो घबराए हुए थे और 11:35 पर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू किया और 11:50 पर वो फ़ौरन से अपनी नशिस्त पर जो है वो वापस जाकर बैठ गए। जब वो बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, एक तो उनके बयान को बानी पीटीआई ने काफ़ी करीब से और काफ़ी तवज्जो के साथ सुना है और उसके बाद वो उनके बयान के ऊपर मुस्कुराते रहे और उनके बयान के दौरान ही उन्होंने कहा कि रकम मुंतकली के हवाले से जो इक़दामात का तस्करा परवेज खटक कर रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ के फ्लैट जो हैं वो अब पाकिस्तान आने चाहिए। ये उन्होंने समात के दौरान बानी पीटीआई ने ये गुफ्तगू की है और 15 मिनट के अंदर उन्होंने अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद वो अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गए, क्योंकि बानी पीटीआई जब उनके बराबर में खड़े थे तो 2 मरतबा परवेज खटक ने जो है वो अपनी नशिस्त तब्दील की है। एक मरतबा वो थोड़े से फासले पर होकर खड़े हो गए, दूसरी मरतबा वो जो नए प्रोसिक्यूटर हैं उनके साथ जाकर। अच्छा, ये बताइए उस्मान के ये वाकया तो हो गया, देखिए वो बानी तहरीक अक्सर कहते हैं कि माइंड गेम्स तो कोई मुझसे सीखे, तो उन्होंने जाहिर है कि परवेज खटक साहब के करीब जाकर यूट्यूब रूटस मार कर लुक दी होगी, है तो जाहिर है कि वो, खैर वैसे भी वो बेचारे पतले दुबले हैं, हो सकता है कि आज एयर कंडीशनर जो है उसने भी उन्हें कुछ सर्दी लगा दी हो। खैर ये यार तकल्लुफ़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बताइए कि बाद अज़ां आप लोगों से
उनकी गुफ्तगू भी हुई सहाफ़ियों से जो आप मौजूद थे, यानी परवेज़ खटक साहब नहीं बल्कि यानी बानी तहरीक इमरान खान साहब की। जी बिल्कुल, क्योंकि समात के दौरान ही बानी पीटीआई जो है वो सहाफ़ियों के करीब आए, और चूँकि आज सुबह का ये मामला था कि बानी पीटीआई के कहने पर ही हमें जो है वो आगे शिफ्ट किया गया था, और बिल्कुल बानी पीटीआई हमारे बराबर में खड़े थे, और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने रूटीन के मुताबिक जिस तरह अमूमन वो समात में इदारों पर तनकीद करते हैं, आज भी उन्होंने तनकीद की है, और उन्होंने एक मुतालबा भी किया है कि हमारे जो कारकुनान इस वक्त मुख्तलिफ जेलों के अंदर ख़ासकर जो उनकी ख़वातीन कैद हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। और दूसरे नंबर पर उन्होंने बजट के ऊपर बात की है, और उन्होंने कहा कि बजट जो है वो इस वक्त मेरा अपना ज़ाती मुलाजिम, जो उन्होंने मिसाल भी दी है कि जेल के अंदर जो उनको मुलाजिम मिला हुआ है, उनका कहना है कि उसको 40,000 रुपये सैलरी मिल रही है, लेकिन 41,000 रुपये उसके घर का बिल आ गया। और साथ उन्होंने ये कहा कि उनकी जब अपनी हुकूमत थी तो उनकी हुकूमत में 2.8 ट्रिलियन जो कर्जे थे वो मौजूद थे, लेकिन इस वक्त ये कर्जे जो है वो बढ़कर 8 से 9 ट्रिलियन तक जो है वो पहुंच चुके हैं। और उन्होंने कहा कि कर्जे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक बात बताइए, ये क्योंकि यार के यानी वक्त का प्रॉब्लम होता है, उस्मान आपको बहुत ज़्यादा उलझा रहा हूँ। बात ये है कि क्या उन्होंने ये बात आपके सामने बयान की कि वो कन्वे कर रहे हैं कि उनकी ज़ात से मुतल्लिक़ा जो मुक़द्दमात हैं उनकी जब समाअत हो रही हो सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब खुद को उस बेंच से अलहदा रखें? आपसे ये उन लोगों ने कहा है ज़बानी तौर पर? जी, इससे पहले जो समाअत थी, गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई ने ये कहा कि हमारी 25 मई की एक पटिशन जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और जो मुख्तलिफ अदालतें हैं वहाँ पर हमारे केसेस जो है वो ज़ेर समाअत हैं, और अदलिया से हमें उम्मीद है। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके ऊपर हमारे वकला ने अदम एतमाद का इजहार किया है, और उन्होंने साथ ये भी मुतालबा किया है कि जिस तरह लेकिन आप सहाफ़ियों में से किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आज आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं जबकि एक हाईली सेंसिटिव मुकदमे की, यानी जो कि इन्हीं की जमात का उठाया हुआ मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, उसका फैसला आने की उम्मीद है? उसमें उन्होंने वजह भी दी है, और आसमान मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, वो उन केसेस की बात कर रहे हैं जो अंडर अम्ब्रेला ऑफ नैब तरमीम आते हैं, उसमें चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। वो कह रहे हैं, यानी उन्होंने कैटेगराइज किया है, अदनान कह रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने बानी पीटीआई ने सानिया 9 मई के जो मुकदमात है और नैब के जो रेफरेंसेस हैं और उनकी जो पेंडिंग है पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। और आज मैंने भी बानी पीटीआई से ये पूछा कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद मुखालफत की है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं उनमें से पीटीआई का ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया इसके ऊपर कि ये नहीं होने चाहिए, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने ये कहा कि 13 सालों से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दों की सहूलत कारी की जा रही है, इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ क्या है? तो बानी पीटीआई ने वो बिल्कुल मेरे करीब आए और उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में 13 बरस तक दहशतगर्दों की सहूलत कारी की है, तो हमारे दौर इक़्तिदार में सबसे कम दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो रोनमा हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा अगर पंजाब और सिंध की बात करें तो वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा हुए हैं, और इन्होंने हमारे ऊपर जो मुकदमात दर्ज किए हैं वो भी पंजाब और सिंध में दर्ज किए गए हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपके जो वज़ीर आला हैं इस वक्त अली अमीन गंडापुर, वो भी इनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप इन दोनों जमातों के खिलाफ जो वो खैबर पख्तूनख्वा में भी आप मुकदमात दर्ज करेंगे, तो अगर आप वहाँ मुकदमात दर्ज करेंगे तो आपके खिलाफ जो मुकदमात यहाँ दर्ज है उसके ऊपर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? तो उनका ये कहना था कि सियासी जो जमातें हैं उनको बातचीत करनी चाहिए, और इसी तरह उन्होंने फिर बात की। और सियासी जमातों को बातचीत करनी चाहिए, जाहिर है कि भाई ये चीज़ें देखनी चाहिए कि रिपरकशंस हो सकती हैं। अगर आप मेरे लोगों को वहाँ पे करोगे तो फिर केपी वाले वो दूसरों को। आपका उस्मान बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमने बहुत वक्त दिया, आप आए हो, सारा दिन वहाँ पे भी गुजारा था, ब्रेक पे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब फिर आप मुझे कहेंगे मेरा बैरिस्टर जाग गया है, केस की वक़्त इतनी रह गई हो कि उसके लिए आपको वादा माफ गवाहों पे डिपेंड करना वो पड़े, तो मेरे ख्याल में फिर आप पहले भी आई थिंक कि परवेज खटक यहाँ पे वादा माफ गवाह नहीं है, गवाह टेक्निकली देखो। जब नैब रेफरेंस की बात होती है गवाह से ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई मेरे। फिर तो तुम्हारा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक बैरिस्टर यार यहाँ पे कार्ड फेंक के जो है ना अपने वकील वाला, यहाँ पे सहाफी बन के बैठा करो बस। ये भाई ब्रेक ले ले भाई, खुदा के लिए, ये मेरा इसमें खून बढ़ाना होता है बस। मैं क्या करूं, ब्लड प्रेशर का मेरा दुश्मन है मेरे।
वेलकम बैक। नूर साहब, कल तो मैं बड़ा खुश था कि 50 अरब की तकरीबन सब्सिडी समझे उसे वज़ीर आज़म ने घरेलू सार्फिन 200 यूनिट से कम वाले जो थे, लेकिन आज मुझे एक नया खदशा लायक हो गया। वो जो 7 रुपये 12 पैसे की आपने एक खबर सुनाई थी, उसका कहीं केस वो जो हुकूमती था वो नेपरा ने उसकी केस पे फैसला महफूज किया। अब उनको भी फैसला महफूज करने की आदत पड़ गई है, तो मुझे खदशा है कि वो बर्डन कहीं फिर अवाम पर ना आ जाए बिजली के बिलों में। ऐसा होगा, लेकिन ये तो अभी तक मामला हमारे डोमेस्टिक है ना, अजाब हम पे नाज़िल होना है। मुझे अब एक और फिक्र लाहक हो चुकी है। अच्छा, वो क्या? भाई साहब, ये जो बिजली की महंगाई की वजह से जो आवाम के दिलों में गुस्सा आ रहा है, उबर रहा है, उसको बड़ी जहानत और महारत से हमारे देरीना दोस्त ऑल वेदर फ्रेंड चीन के खिलाफ मुंतकिल किया जा रहा है। क्यों? और मैं इसके बारे में मुस्तकिल खबर नशर में फोरवार्न करता रहा हूँ। मैंने पहली मर्तबा इसकी तरफ इशारा किया था जी इस साल 20 मार्च, जब मशहूर ज़माना अमरीकी वजारत ख़ारिजा के ऑफिसर डोनाल्ड लू वो वहाँ की कमेटी के रूबरू पेश हुए थे। देखिए क्या कहा था मैंने। उन्होंने एजिटेट किया है सबसे पहले कि जी पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि चीन के तुम कर्जों के जाल में फंस रहे हो, बचो। यानी बाकायदा, अरे बहुत नहीं, बाकायदा एक डिलिब्रेट साजिश है आपको दूर करने की। ये हो गया जी। ये 20 अप्रैल को आपने 20 अप्रैल को कहा, तो इसके एग्जैक्ट तकरीबन एक महीने बाद मैंने दोबारा 23 मई को एक और बात की इसी तनाजुर में। हमारे यहाँ जो बिजली पैदा करने वाले कारखानों में IPPs जिसको कहते हैं, IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उसमें चाइनीज कंपनियां जो हैं अब वो सरे फहरिस्त है। ये बात तो बड़ी बहुत उछाली जा रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से। तुम ये देखोगे कि हर दूसरे तीसरे दिन हमारे अखबारात में ये खबर आई होती है कि अरे साहब चीनियों का तो $2 अरब बिजली की कंपनियां जो हैं वो कह रही हैं नहीं जी नहीं साहब पैसे कटो। अच्छा, अब IMF वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर आप तो चीन तो आपका इतना पुराना दोस्त है, आप बड़के लगाते हैं कि हिमालय से भी बुलंद और समुद्रों से गहरा, और फिर ये कि उसके बाद इन्होंने एक और लफ्ज़ ऐड कर दिया था कि शहद से भी मीठी दोस्ती। हाँ हाँ। तो शहद से मीठी दोस्ती वालों को कहें कि ये आपसे यकमुश्त पैसे क्यों मांग रहे हैं, इनको किस्तों में ले लें आपसे। 20 मार्च को पहला कहा आपने खदशे का इजहार किया, खबर थी, और 23 मई को उसके बाद फिर बजट प्रेजेंटेशन के बहुत करीब 4 जून को इसी प्रोग्राम में सुनाए जी, फिर मैंने इसी मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई थी। तो उन्होंने कहा जी अच्छा आपका बहुत बड़ी रकम आपने जो देनी है कर्जों की अदायगी में और वगैरह वगैरह, वो तो आपने अपने दोस्त चीन की लगाई IPPs को देनी है। उन्हें कहें वो आपका 5 साल तक बढ़ा दें, को थोड़ा सा स्टैगर कर दें उनको, वो स्टैगर कर दें भाई। अच्छा, ओके, कि कम कर दें। अगर वो चीनी मान जाए किसी तरह, चीनी हुकूमत जो है चीनी कंपनियों को कहे ओके वी कॉम्पनसेट यू दोस्ती की खातिर, तो आप 3 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूज टास्क, और शहबाज साहब इस मकसद के लिए गए। ले जना ये हो गया सारी बात। मैं पुकारता चला गया, दुहाई मचाता चला गया। आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब, जिन्होंने ये अहद बांध रखा है कि वो 12 जुलाई को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे ताकि महंगाई से धरना होगा, मरना होगा, वो उसके लिए जब मोबिलाइजेशन कर रहे थे, उस वक्त जो उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब फरमाया है उसको सुन ले तो आपको अंदाजा होगा। जो मैं फोरवार्न कर रहा था, वो पब्लिक में बात आ रही है, वो क्लिप सुनाइए जैसा दीजिए। ये तो कह दिया, लेकिन मैं अब उनका भी कहना बजा, आपके खदशात तो हैं ही मेरे ऊपर मुसल्लत है ना हर तरफ से, लेकिन आपको पता है आप चीन के बारे में बात कर रहे हैं। ओ भाई आपने कहा ना कि 23 मई को कि समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची, शहद से इतने गहरे ताल्लुकात वो नहीं हो सकते। आपको ये खदशा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम खान है। हमारे एक बहुत सीनियर साथी हैं जी, कामरान खान साहब उनका नाम है। उन्होंने क्या कहा? ठीक,
अच्छा, आप उनके साथ हज़ारों इख्तलाफ कर सकते हैं। हाँ। मैं और वो दोनों तकरीबन एक साथ हमारा जर्नलिज्म हम दी मुस्लिम में इकट्ठे थे, और ये आप हज़ारों इख्तलाफ करो, कामरान खान जो हैं वो मुआशी अमूर के बारे में बहुत खबर हाँ, उनको ग्रिप कराची है, बेस्ड उनको पर ग्रिप लिखा है, ठीक है। इन्होंने भाई साहब बाकायदा अपना प्रोग्राम भी किया है, उसके अलावा इन्होंने एक बाकायदा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। क्या लिखा है? अफसोसनाक मगर तल्ख हकीकत है कि आज पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बड़ी हद तक चीन की पकड़ में है। माशी अब- तकदीर सर, ये उनका लिखा हुआ है। अव्वली वजह यह है कि पाकिस्तान अब सी पैक के तहत हासिल कर्जों के जंजाल में फंस चुका है। अब हमें आज़ाद करने की कुंजी सिर्फ चीन के पास है। आज सी पैक के तहत पाकिस्तान के IPPs पाकिस्तान के डेट ट्रैप की एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। ठीक है जी, ये आगे भी उन्होंने कहा। ये तो आपने तो वो जो हमारा सी पैक जिसको हम समझते हैं भाई ये मैंने नहीं, ये कामरान आपने भी नहीं खान खदशात का इजहार किया था ना। मैंने देखो यार, मेरे मुंह में बातें ना डाला करो। मैंने ये इंट्रो में कहा, मैंने कहा कि मैं सेकंड सेगमेंट में जिक्र करूंगा। उसमें मैंने ये लफ्ज कहा कि मुझे जो खदशात थे कि इसका सारा गुस्सा जो है किसी तरह चीन की जानब, मैं ये कह रहा हूँ। उसी वो अब उस बात को इंटरप्रिटेट कर दिया उन्होंने। चले, अब हम ये कह सकते हैं कि जी कामरान खान साहब जो हैं शायद मौजूदा हुकूमत के मुखालिफिन या नाक़दीन में से हैं, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा कामयाब दौरा रहा वजीर आजम का, फिर वजीर भी आए। अब आज के जंग अखबार में जी एक साहब हैं मोहम्मद मेहदी। मैं आपको अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर और तवील रिपोर्टिंग में अरसा गुजारने के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि ये मेहदी साहब जो हैं, जब नवाज शरीफ साहब पर बहुत कड़ा वक्त था और वो सऊदी अरब जलावतन कर दिए गए थे, तो ये बड़े लाइलो नीचे नीवे रह के, जिसको पंजाबी में कहते हैं, शख्स हैं। ये यहाँ पे बहुत मुमकिन कोशिश करते थे कि ये डिप्लोमेटिक सफारती हलकों से मिले जी, और किसी ना किसी तरह अपनी क़यादत और अपनी पार्टी के बारे में कोई अच्छी बातें, खैर की खबर लाने की कोशिश करें। उनके बकौल हाल ही में वो चीन से होकर आए हैं, और चीनी उनके मेज़बानों ने कहा है कि आप हमारी तरफ से पाकिस्तानियों दोस्तों को पैगाम पहुंचाएं। उसमें वो लिखते हैं, ये आज का छपा हुआ है। अच्छा, चीनियों ने कहा है? यस, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये उसमें बाकायदा लिखा है कि आपका इस वक्त भी अब भी हमारी बात है, सोच से हमारे पाकिस्तानी भाइयों को आगाह कीजिए। अब आगाह क्या कीजिए, चीनी इस पर बहुत फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बिजली की कीमतों ने ऐसा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि इसके बावजूद कि गुज़श्ता चंद माह में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी आई है, मगर बिजली की कीमत बर्क रफ्तारी से बढ़ रही है, और वो इस कमी को आवाम को महसूस नहीं होने दे रही। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। चीनी इस पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में बिजली के पैदावारी यूनिट्स को ठीक लगाया गया था, IPPs को, और उस वक्त यह ख्याल था कि घरेलू सार्फिन से हटकर जब इंडस्ट्री को बिजली की ज़रूरत होगी तो इस वक्त इतनी बिजली मौजूद होनी चाहिए। मगर हुआ ये कि पाकिस्तान में वो चीनी इंडस्ट्री मुंतकिल ही ना हो सकी जिसने इस बिजली को इस्तेमाल करना था। मतलब वो करेंगे हम बरियो जिम्मा है। मैं तुम्हें पहले भी कह रहा था कि जी चूंकि आपने जोन ही नहीं बनाया इंडस्ट्रियल, वो कह रहे हैं चीनियों की ज़बानी। और इस मुंतकिली ना होने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो इंडस्ट्रियल जोन्स कायम किए हैं उनमें बुनियादी ज़रूरियात जैसे बिजली, पानी, गैस वगैरह तक मौजूद नहीं हैं, सड़कें तक तामीर नहीं की जा सकी हैं। चीनी उसके मुकाबले में वियतनाम की मिसाल देते हैं कि उस मुल्क ने इंडस्ट्रियल जोन्स को मयार के मुताबिक तामीर किया, और हमने वादे के मुताबिक इंडस्ट्री वियतनाम में मुंतकिल कर दी। अगर पाकिस्तान भी ऐसा कर लेता या अब कर ले तो इंडस्ट्री लग जाएगी और बिजली की कीमतों का बहरान अस खुद माजी हो जाएगा। पर इसको भी कई साल लगेंगे, इस ख्वाब को शर्मिंदा था। आप एक काम क्यों नहीं करते जी, सारा रोला ही मुकाओ ना, आप ये खदशात का इजहार करना बंद कर दीजिए। मेरे मुझे तो कभी कभी लगता है कि आपके खदशात इस मजलूम कौम को ले डूबेंगे। मैं यहाँ बैठ के लोगों को झूठ बताऊं?
भाई मैंने तुम्हें उस शख्स का पढ़ा लिखा मजमून सुनाया है। आपने 2 रेफरेंस दिया, मैंने मान लिया कि आपके खदशात दुरुस्त यार, वो साबित हो रहे हैं। 2 नहीं 3। चलो ठीक है, 3 हो गया। एक अमीर जमात इस्लामी जो धरना सॉरी, लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है। और मैं इस बात के कब से दुहाई मचा रहा हूँ। मेरे काउंटर आर्गुमेंट पे आप भी नहीं आए ना। वो वजीर आजम का कामयाब दौरा, चाइनीज सीनियर तरीन वजीर यहाँ पे आए, तो उस सबको आप कहीं को वेट नहीं करते। उसको भी तो डॉट्स में डाले ना, जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ आपको। इधर मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? इंडस्ट्रियल जोन कहाँ है? आपने खुद, जब मैंने इंडस्ट्रियल जोन की बात कही तो आपने खुद क्या कहा अपनी जबान से? दोबारा नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, यूं इधर शक्ल करो। उसको सालों लगेंगे ना। आपने यही कहा ना। तो भाई वजीर आजम साहब यही पैगाम लेकर आए हैं। अब एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि एकदम से इस वक्त ये कजिया क्यों खोला गया है? सर इसलिए खोला गया है कि ये मेरी खबर नहीं है, ये आपको वजीर खजाना, आपके वजीर आजम बता रहे हैं कि अब आपने IMF के साथ निगोशिएट करना है 6 से 8 अरब डॉलर का पैकेज। नहीं, उससे ये है कि हम, ये तो नहीं हो सकता हम चाइना से लड़ाई मोल ले लें या दोस्ती पे कंप्रोमाइज कौन कह रहा है कि मैं? सर जी वो बार बार क्या बजिद हैं, मसद के अमीर जमात इस्लामी आपको कह रहे हैं कि जाएं, जाकर कहें कि आप हमारे कैसे दोस्त हैं। यही बात आपने भी की थी कि जाएं, अमरीकी ये कहते हैं, आपने कहा था IMF वाले ये कहते हैं। अमरीकी कह रहे थे ना, लेकिन ये वो तो मैंने कहा कि अमरीकी कह रहे हैं, और फिर अब मुझे जमात इस्लामी वाला कह रहा है। हाफिज साहब भी कह रहे हैं। दूसरा कामरान खान साहब लिखते हैं कि हम CPEC के कर्जों के जंजाल में और जंजाल कि आप जाल में जकड़े जा चुके हैं, फंसे जा चुके हैं। यानी उन्होंने अपने उस ट्वीट का अंजाम ये किया कि इस वक्त चीन के, मतलब जैसे कि हमारी 30 सेकंड मेरे पास, 30 सेकंड। तो देखो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी इल्तिजा है वज़ीर आज़म साहब से कि वो किसी ना किसी तरह या को आर्टिकल लिखें या कौम से ख़ताब फरमाएं और कहें कि जनाब ये जो खदशात हैं ऐसी कोई बात नहीं है और हम वाकई इंडस्ट्रियल जोन्स की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और चीनी हमारे साथ या जो कामरान खान साहब का ट्वीट है, इसमें कई अहम पहलू हैं जिसका आपने भी 2 उनको ये को हुकूमती लोग एक्सप्लेन करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। यस, एक ब्रेक, अदरवाइज फौरी तौर पे ब्रेक। इतनी पुरानी दोस्ती, क्योंकि अवाम में तो गुस्सा बहुत, तो जनाब ये बिजली के बिल अदा करने जोगे नहीं रहे, बस इस हकीकत को बहुत फिक्रमंदाना लम्हा है ये ब्रेक। नाज़रीन वेलकम। एक मिनट अदनान, अब वक्त बहुत ही मुख्तसर रह गया हमारे पास। तुम्हें याद होगा इस हफ्ते के आगाज़ में हमने कराची में बहुत ही एक दलेर, बहादुर और फ़र्ज शनास जो हैं पुलिस के ऑफिसर DSP अली रज़ा साहब, जिनकी टारगेट किलिंग हुई, और वो बेचारे करीमाबाद में अपने पुराने दोस्तों और गरीब जो वहाँ के उनके अहले मोहल्ला हैं उनका ख्याल रखने वहाँ जाते थे। उनको टारगेट किलिंग के साथ बड़ी उन्हें शहीद किया गया। तो उस वक्त हमें ये उम्मीद थी कि यार आइंदा 1-2 दिनों में हमें कुछ पता चलेगा कि इनके साथ हुई वारदात का कौन जिम्मेदार है। आज आसिफ एजाज शेख साहब जो कि DIG हैं काउंटर टेररिज्म के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जैसे मैंने पहले भी अपने ब्यूरो चीफ समर अब्बास साहब को, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव होता है, उनसे मैंने दरख्वास्त की खुद कि जी आप खुद तशरीफ़ लाएं और हमें बयान कर दें कि DIG साहब ने क्या फरमाया है इस कत्ल के बारे में और ओवरऑल जो दहशतगर्दी कराची में उभर रही है उसके बारे में उनके क्या तासुरात या ख्यालात थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी समर भाई। वालेकुम अस्सलाम नुसरत सर। जी भाई, तो आज जो कुछ हुआ आप हमें बयान कर दीजिए, हम हमतन गोश हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि DIG साहब ने क्या फरमाया। जी बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद सर और अदनान हैदर भाई। बात यह है कि सर आप हमेशा ही कराची को जो है इस तरह के अहम मौजू को डिस्कस करते हैं। कराची की अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता जाऊं तो जो कराची में, क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पे हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो स्लीपिंग सेल है वो मौजूद होते हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है जिस पे आज हम बात करने आए हैं, DIG CTD जो है आसिफ एजाज शेख, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दर आदम खेल के TTP के
जो कमांडर थे मोहम्मद शोएब, उसको जो है तहाड़ टाउन बल्दिया टाउन में है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। DIG CTD आसिफ एजाज शेख का ये कहना है कि जो मुबैना दहशतगर्द है मोहम्मद शोएब जो है, ये मुहर्रम के जुलूस को औरंगी टाउन में टारगेट करना चाहता था, इससे बारूद भी मिला है, और इसका बेटा जो कि दरादम खेल में था वो भी पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया था, जबकि इसके दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए CTD जो है वो जो है कार्रवाई कर रही है और मुख्तलिफ इलाकों में उनके छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस दौरान जब मुहर्रम अल हराम के मजालिस जुलूस जो हैं वो जारी थे। इस दौरान CTD ने कामयाब कार्रवाई की और इस जो टेररिस्ट को गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहर में जो कलदम तंजीमों के जो स्लीपिंग सेल हैं वो मौजूद हैं, और इस हवाले से उन्होंने ये भी तस्दीक की कि CTD के जो अफसरान हैं वो भी जो है उन्हें भी थ्रेड है, लेकिन ये मामूल की थ्रेड होती है और उन्हें हमेशा वो अंडर थ्रेड ही रहते हैं। इसके अलावा जो अली रज़ा इतवार के रोज़ जो CTD के अफसर थे उन्हें जो है टारगेट किया गया, उस हवाले से उन्होंने कहा उन्हें लीड्स मिली हैं और इसमें कलदम तंजीम के हवाले से 90% जो है उनको शवाहिद मिल गए कि वो मुलविस है। 90% नहीं, एक मिनट सोहन भाई, आप कह रहे हैं कि DIG साहब का ये दावा था कि उनको 90% शवाहिद मिले हैं कि एक ख़ास पर्टिकुलर कालदम तंजीम इसमें मुलविस है, और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो उन तक पहुंच पाएंगे या मज़ीद तफसीलात बता पाएंगे आइंदा कुछ दिनों में? देखें, जिस तरह आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे तो बिल्कुल ये उम्मीद नज़र आ रही है कि वो उनको काफ़ी लीड्स मिल चुकी हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है उसमें जो टेररिस्ट पकड़ा गया उसके हवाले और उसके बाद जो अली रज़ा केस पे बातचीत हुई तो उन्होंने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये कहा कि 90% जो है उन्हें ये यकीन है और ये शायद मिल चुके हैं कि इसमें कलदम जो तंजीम है वो मुलविस है, और इस केस में काफ़ी लीड्स भी मिली हैं। अब अगर हम दूसरे केसेस की बात करें जो शहर में जो 2 कुरंगी, क्योंकि शहर में जो 5-6 दिन से ना मुसलसल किलिंग की वारदातें हो रही थी तो शहरियों में खौफ व वराज भी काफ़ी फैल गया था। 2 जो टारगेट किलिंग हुई हैं जिनमें कुरंगी में सियासी जमात पीपल्स पार्टी के जो 2 कारकुन जो हैं वो मारे गए थे, उन दोनों केस को जो है ईस्ट जोन पुलिस ने हल कर लिया। SSP कुरंगी ने जो है अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दोनों जो है ज़ाती दुश्मनी पे पीपल्स पार्टी के कारकुनान को कत्ल किया गया। अब जो अली रज़ा का केस है वो स्पेसिफिक केस, उस पर जो है CTD भी काम कर रही है और दीगर एजेंसियां भी काम कर रही हैं कि उसमें कुछ बेहतरी के मिले। लेकिन अगर मैं ओवरऑल शहर कराची की सूरत हाल देखूं तो ये जो आपने स्लीपिंग सेल्स की बात की है रेंज समर भाई, तो इस पे तो कराची में तो हमने देखा कि बड़े अरसे से रेंजर्स वहाँ पे है, तो कराची हमेशा एक्सेस में रहा है। जैसे फॉल ऑफ काबुल हुआ तो जब जेल से बहुत से लोग ISKP और ISS के भागे थे, उनके फुटप्रिंट्स और उनकी जो ट्रेस उनको किया गया था वो कराची तक वो ट्रेस हुए थे। अब उस बात को भी 2.5 साल गुजर गए, तो इस 2.5 साल में कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई आपकी नज़र में दाइश के लोगों की, TTP के कमांडर्स की या दीगर कालादम तंजीमों की? देखें, इस हवाले से जो है अभी तक नहीं ऐसी कोई गिरफ्तारी हमें अगर मैं याद करूं या मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन आज जो टेररिस्ट पकड़ा गया है ये बड़ी गिरफ्तारी है, ये बड़ा टारगेट है। लेकिन इसमें एक अहम बात भी है कि जो हमने मालूमात ली है उसमें ये मालूमात हमें मिली हैं कि